Chapter 7. Challenging the caste system. Human beings have always had the urge to express and share whatever they feel through language, music and art. But whatever the medium or message, all forms of artistic expression are ultimately products of the cultural stream from which they spring. They cannot simply emerge from vacuum. They have to flow from the occupations and preoccupations of men. The kaleidoscopic art scene on the Indian subcontinent is a reflection of the enormous impact of series of new influences. मनुष्य हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और साझा करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वह भाषा, संगीत या कला के माध्यम से हो। लेकिन चाहे जो भी माध्यम हो या संदेश, सभी प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति अंततः उस सांस्कृतिक धारा के उत्पाद होते हैं, जिससे वे उत्पन्न होते हैं। ये केवल शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकते, इन्हें मनुष्यों की गतिविधियों और विचारों से प्रेरित होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप पर कला के दृश्य आर्ट सीन में एक रंग-बिरंगी तस्वीर कलाइडोस्कोपिक आर्ट सीन देखी जा सकती है, जो नए प्रभावों इन्फ्लुएंसेस के विशाल प्रभाव का प्रतिबिंब है। Indian art and culture has absorbed outside impacts by varying degrees and has become richer for the exposure. This cross-fertilization between different art streams converging on the subcontinent produced new forms that, while retaining the essence of the past, succeeded in integrating selected elements of the new influences. In other words, through the study of the history of art we can know about our past. This not only helps us to reconstruct history more accurately, it also tells us how and why various developments took place from time to time within the socio-political framework of our society. भारतीय कला और संस्कृति ने बाहरी प्रभावों को विभिन्न स्तरों पर आत्मसात किया है और इस अनुभव से यह और समृद्ध हुआ है। विभिन्न कला धाराओं आर्ट स्ट्रीम्स के बीच यह पारस्परिक प्रभाव क्रॉस फर्टिलाइजेशन उपमहाद्वीप पर नए रूपों को जन्म देता है, जो अतीत के सार को बनाए रखते हुए नए प्रभावों के कुछ चुने हुए तत्वों को भी अपनाने में सफल हुए। दूसरे शब्दों में, कला के इतिहास हिस्ट्री ऑफ आर्ट का अध्ययन करके हम अपने अतीत पास्ट के बारे में जान सकते हैं। यह न केवल हमें इतिहास को अधिक सटीक रूप से पुनर्निर्माण रिकॉन्स्ट्रक्ट करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि हमारे समाज के सामाजिक राजनीतिक ढांचे सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में समय समय पर विभिन्न विकास डेवलपमेंट्स कैसे और क्यों हुए। रिसर्च इनटू इंडियाज पास्ट. The revival of interest in the culture of ancient India arose through the work of Sir William Jones, who held a high post under the company. He founded the Asiatic Society of Bengal in 1784 with an aim to research India's past. Due to these efforts, the people of India began to overcome the demoralizing effects of colonial hegemony. They began to realize that their ancestors had great achievements to their credit. भारत के अतीत में रुचि की पुनः जागरूकता रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट सर विलियम जोन्स के कार्यों से उत्पन्न हुई, जो कंपनी के तहत एक उच्च पद पर थे। उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के अतीत का शोध रिसर्च करना था। इन प्रयासों के कारण भारत के लोग उपनिवेशी प्रभुत्व कॉलोनियल हेगेमनी के हतोत्साही प्रभावों डिमोरलाइजिंग इफेक्ट्स को पार करने लगे। उन्होंने यह महसूस करना शुरू किया कि उनके पूर्वजों एंसेस्टर्स ने महान उपलब्धियां
ग्रेट अचीवमेंट्स अर्जित की थी। द एफर्ट्स ऑफ विलियम जोन्स, मैक्स म्यूएलर एंड मोनिया विलियम्स रिवील्ड टू द वर्ल्ड द ट्रेजर ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। William Jones translated Kalidas' Abhigyan Sakuntalam and James Prinsep deciphered the Brahmi script in 1834. Thus, they reconstructed the history of Ashoka and ancient India. In fact, Indians had forgotten the Brahmi script, written records of which were not available. Because of their efforts, Indians felt proud of themselves and their ancestors, while Europeans also recognized the rich cultural heritage of India. But with the political domination by the British in the 19th century, there was complete change in the intellectual and socio-economic pattern of life in India. Thus, under the cultural impact of the British, the native India tradition was slowly inching towards the great Renaissance tradition of the West. विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और मोनियर विलियम्स के प्रयासों ने दुनिया को भारतीय साहित्य और संस्कृति का खजाना, ट्रेजर, दिखाया। विलियम जोन्स ने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया और जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने का तरीका ढूंढा। इस प्रकार उन्होंने अशोक और प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री, पुनर्निर्मित किया। दरअसल, भारतीयों ने ब्राह्मी लिपि को फॉरगॉटन दिया था और इसके लिखित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे। उनके प्रयासों के कारण भारतीयों को अपने आप और अपने पूर्वजों पर प्राउड महसूस हुआ, जबकि यूरोपीय लोगों ने भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज को पहचाना। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिशों के राजनीतिक प्रभुत्व, पॉलिटिकल डोमिनेशन के साथ भारत में जीवन के बौद्धिक और सामाजिक-आर्थिक ढांचे, सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव, चेंज आ गया। इस प्रकार ब्रिटिशों के सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इम्पैक्ट के तहत भारतीय परंपरा धीरे धीरे पश्चिमी पुनर्जागरण, रिनेसांस ट्रेडिशन की दिशा में बढ़ रही थी। पेंटिंग, a rich Indian tradition of art and culture was already established well before the beginning of the BCE century in Indian paintings can be broadly divided into two categories, murals and miniature paintings. The first and the most creative period of the art of painting extends from the 8th to the 7th centuries. Of this, the richest heritage is that of the murals of Ajanta. In northern India, the frescoes at Bagh caves are the best survivals. Gradually, the art of wall paintings decreased and the miniature paintings developed under the Mughals. भारतीय कला और संस्कृति की एक समृद्ध परंपरा पहले ही 20वीं सदी के प्रारंभ से पहले स्थापित हो चुकी थी। भारतीय चित्रकला को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, भित्ति चित्र, म्यूरल्स और लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग्स। चित्रकला के पहले और सबसे रचनात्मक, क्रिएटिव काल का विस्तार 1वीं से 7वीं सदी तक हुआ। इसमें से सबसे समृद्ध धरोहर अजंता की भित्ति चित्रों, म्यूरल्स ऑफ अजंता, की है। उत्तर भारत में बाघ गुफाओं, बाघ केव्स के चित्र सबसे अच्छे उदाहरण हैं। धीरे धीरे दीवारों पर चित्रकला का प्रचलन कम हुआ और मुगलों के समय में लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग्स का विकास हुआ। A number of provincial branches of paintings developed in different parts of the country during the A number of provincial branches of paintings developed in different parts of the country during the Mughal period. मुगल काल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में
चित्रकला की कई प्रांतीय शाखाएं विकसित हुईं, लाइक पहाड़ी, पैट, कोटा, बूंदी, etc. These traditions gradually declined owing to the changing socio-economic condition, which led to the migration of artists from one place to another in search of livelihood, which, in turn, led to the change of popular taste under the westernized impact of British colonialism. In the late 19th century, the taste of the art-loving public gradually shifted from the royal courts of the hill states to the folk paintings of the bazaar. Gradually, under the cultural impact of the British, the native Indian tradition was slowly discarded due to the intellectual and technological superiority of the West. यह परंपराएं धीरे धीरे बदलते सामाजिक आर्थिक हालात, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण लुप्त होती चली गईं, जिससे कलाकारों को जीवन यापन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित किया। इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पश्चिमी प्रभाव, वेस्टर्नाइज्ड इम्पैक्ट के तहत लोकप्रिय स्वाद, पॉपुलर टेस्ट में बदलाव लाया। 19वीं सदी के अंत में कला प्रेमियों का स्वाद धीरे धीरे पहाड़ी राज्यों के शाही दरबारों, रॉयल कोर्ट्स से बाजार की लोक चित्रकला, फोक पेंटिंग्स की ओर स्थानांतरित हो गया। धीरे धीरे ब्रिटिश सांस्कृतिक प्रभाव के तहत पश्चिम की बौद्धिक और तकनीकी श्रेष्ठता, इंटेलेक्चुअल एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी के कारण भारतीय परंपरा को धीरे धीरे नकार दिया गया। Murals are huge works executed on the walls of solid structures, as in the Ajanta and Kailashnath temples. Miniature paintings are carried out on any perishable materials such as paper, canvas, hardboard, etc. भित्ति चित्र, म्यूरल्स, वह बड़े काम होते हैं जो ठोस संरचनाओं की दीवारों पर बनाए जाते हैं, जैसे कि अजंता और कैलाशनाथ मंदिरों में। लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग्स, किसी भी नाशवान सामग्री पर की जाती है, जैसे कागज, पेपर, कैनवस, हार्डबोर्ड आदि। Emergence of art schools. Increasing contact with Western cultures changed the tastes of affluent Indians. It attracted a large number of European professional artists to seek their fortunes in Indian courts and principalities in the early 19th century. This continued till the middle of the 19th century, when the British government established art schools in certain Indian cities. This saw the emergence of an Indo-European genus of painting known as company style. These provincial schools of art patronized the new techniques in painting such as Western academic style, nationalist art, etc. पश्चिमी संस्कृतियों, वेस्टर्न कल्चर्स से बढ़ते संपर्क ने समृद्ध भारतीयों, एफ्लुएंट इंडियंस के स्वाद, टेस्ट्स को बदल दिया। इसने एक बड़ी संख्या में यूरोपीय पेशेवर कलाकारों, यूरोपियन प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स को आकर्षित किया, जो 19वीं सदी के शुरुआती दौर में भारतीय दरबारों और रियासतों, इंडियन कोर्ट्स एंड प्रिंसिपैलिटीज में अपना भाग्य, फॉर्चून्स तलाशने आए। यह सिलसिला 19वीं सदी के मध्य तक जारी रहा, जब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भारतीय शहरों में कला विद्यालयों, आर्ट स्कूल्स की स्थापना की। इससे एक इंडो यूरोपियन शैली, इंडो यूरोपियन जेनिस का जन्म हुआ, जिसे कंपनी शैली, कंपनी स्टाइल के नाम से जाना गया। इन प्रांतीय कला विद्यालयों ने चित्रकला में नई तकनीकों, न्यू टेक्निक्स को बढ़ावा दिया, जैसे पश्चिमी शैक्षिक शैली, वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल, राष्ट्रीय कला, नेशनलिस्ट आर्ट आदि।
Art education in the Western style began in India with the establishment of the Mechanical Institute of Art in Calcutta in 1839. However, regular art education began when the School of Indian Art was established in Calcutta in 1954. In 1875, the Mayo School of Arts was opened in Lahore. It was around this time that some Indian artists trained in the Western style pioneered a new movement of art in India. Prominent among them were Ananda Prasad Bagchi and Shyamacharan Srimani. Many new artists went to European countries to refine their art and artistic vision. पश्चिमी शैली में कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन इन द वेस्टर्न स्टाइल, भारत में 1839 में कलकत्ता में मैकेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, मैकेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट की स्थापना के साथ शुरू हुई। हालांकि नियमित कला शिक्षा, रेगुलर आर्ट एजुकेशन की शुरुआत तब हुई जब 1954 में कलकत्ता में स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट की स्थापना की गई। 1875 में लाहौर में मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स खोला गया। यही वह समय था जब कुछ भारतीय कलाकारों ने पश्चिमी शैली में प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत में कला, आर्ट की एक नई धारा की शुरुआत की। इनमें प्रमुख थे आनंदा प्रसाद बागची और श्यामाचरण श्रीमानी। कई नए कलाकार यूरोपियन कंट्रीज में गए ताकि वे अपनी कला और कलात्मक दृष्टि, आर्टिस्टिक विजन को और अधिक निखार सकें। Evolution of the Western academic style. In the post-Renaissance period in Europe, art was dominated by classical artists. Artistic themes revolved around nature and religion. But advancement in the fields of science and technology added new dimensions. यूरोप में पुनर्जागरण, रिनेसांस के बाद कला, आर्ट पर शास्त्रीय कलाकारों, क्लासिकल आर्टिस्ट्स का प्रभुत्व था। कला के विषय मुख्य रूप से प्रकृति, नेचर और धर्म, रिलीजन के इर्द-गिर्द घूमते थे। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने नई दिशा दी और कला में नए आयाम जोड़े। The classical influence continued throughout the first half of the 19th century, but alongside it grew the powerful movement of Romanticism. Romanticism asserted the power of feeling and the individual imagination. However, the French Revolution and Napoleonic Wars helped to bridge the gap between Neoclassicism and Romanticism. शास्त्रीय प्रभाव, क्लासिकल इन्फ्लुएंस 19वीं सदी के पहले आधे हिस्से फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक जारी रहा, लेकिन इसके साथ साथ रोमांटिसिज्म का शक्तिशाली आंदोलन मूवमेंट भी उभरा। रोमांटिकवाद ने भावना, फीलिंग और व्यक्तिगत कल्पना, इंडिविजुअल इमेजिनेशन की शक्ति को महत्व दिया। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन युद्धों, नापोलियनिक वॉर्स ने न्योशास्त्रवाद, न्योक्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बीच की खाई को पाटा। The vibrant arts movement in Europe influenced the artistic expression of Indians to a large extent. Many Indian artists excelled in Western art. In the first half of the 20th century, many Indian artists visited Europe. यूरोप में हो रहे जीवंत कला आंदोलन, वाइब्रेंट आर्ट्स मूवमेंट ने भारतीयों की कलात्मक अभिव्यक्ति, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। कई भारतीय कलाकारों ने पश्चिमी कला में वेस्टर्न आर्ट उत्कृष्टता प्राप्त की।
20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में कई भारतीय कलाकार यूरोप गए। Prominent among them were Devi Prasad Roy Chaudhary, Jamini Prasad Ganguly and Prahlad Karmakar. Like Raja Ravi Verma, several artists chose a painting style developed in the West. They used a naturalistic approach to the human form and landscape. Ala Buksh, 1895 से 1978, painted indigenous subjects in this mode. Even though he adapted an academic style, he never attended art school. उनमें प्रमुख थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी, जमिनी प्रसाद गांगुली, जामिनी प्रसाद गांगुली और प्रहलाद कर्मकार। राजा रवि वर्मा की तरह कई कलाकारों ने पश्चिमी शैली में विकसित चित्रकला पेंटिंग स्टाइल को अपनाया। उन्होंने मानव रूप और परिदृश्य लैंडस्केप को चित्रित करने में प्राकृतिक दृष्टिकोण नेचुरलिस्टिक अप्रोच का उपयोग किया। अल्लाह बख्श 1895 से 1978 ने इस शैली में देशज विषयों इंडिजिनस सब्जेक्ट्स को चित्रित किया। हालांकि उन्होंने एक शैक्षिक शैली एकेडमिक स्टाइल अपनाई, लेकिन वे कभी भी कला विद्यालय आर्ट स्कूल में नहीं गए। फाइजी रहमीन 1886 से 1964 later in life look on a traditional Indian miniature style, yet his earlier work is marked by the European academic approach to painting. Thus, 20th century Indian art swung between two extremes, as one can witness in the work of Abanindranath Tagore and Raja Ravi Verma. फैजी रहमीन 1886 से 1964 ने बाद में पारंपरिक भारतीय लघु शैली ट्रेडिशनल इंडियन मिनिएचर स्टाइल की ओर रुख किया। फिर भी उनके पहले के कार्य यूरोपीय शैक्षिक दृष्टिकोण यूरोपियन एकेडमिक अप्रोच से प्रभावित थे। इस प्रकार 20वीं सदी की भारतीय कला दो विपरीत धाराओं एक्सट्रीम्स के बीच झूलती रही, जैसा कि आप अबनिंद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा के काम में देख सकते हैं। Artistic nationalism. In 20th century, a spirit of nationalism was arising in India because of works of social reformers. In the field of art, artistic nationalism focused on the common man and the themes related to the common man, life of the working class, poverty and manual labor. The Calcutta group in the early 20th century was mainly associated with nationalism, but was also supported and promoted by many British art administrators. 20वीं सदी में भारत में राष्ट्रीयता नेशनलिज्म की भावना का उदय हुआ, जो सामाजिक सुधारकों सोशल रिफॉर्मर्स के कार्यों के कारण हुआ। कला के क्षेत्र में राष्ट्रीयतावादी कला आर्टिस्टिक नेशनलिज्म ने सामान्य व्यक्ति कॉमन मैन पर और सामान्य व्यक्ति से संबंधित विषयों थीम्स पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे श्रमिक वर्ग का जीवन लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास, गरीबी पॉवर्टी और श्रमिक श्रम मैनुअल लेबर। 20वीं सदी के प्रारंभ में कलकत्ता समूह कैलकटा ग्रुप मुख्य रूप से राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसे कई ब्रिटिश कला प्रशासकों ब्रिटिश आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा भी समर्थन और बढ़ावा दिया गया था। However, by the end of the 19th century, the colonial setting in India formed the backdrop of nationalist movement in Indian art. The movement led by Abanindranath Tagore and supported by E.B. Havell had the Calcutta School of Art in the opening decade of the 20th century.
Havel tried to propagate true appreciation of India's cultural heritage abroad and advised young Indians against blind admiration of Western art. Nationalist art culminated in the works of three Tagores, Gagendranath Tagore, Abnindranath Tagore and Rabindranath Tagore. हालांकि 19वीं सदी के अंत तक भारत में उपनिवेशी माहौल, कॉलोनियल सेटिंग ने भारतीय कला में राष्ट्रीयतावादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट की पृष्ठभूमि, बैकड्रॉप तैयार की। इस आंदोलन का नेतृत्व अभानिंद्रनाथ ठाकुर, अबनिंद्रनाथ टैगोर ने किया और इसे ईबी हवेल, जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख थे, ने समर्थन और बढ़ावा दिया। हेवल ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज की सच्ची सराहना को विदेशों में फैलाने का प्रयास किया और भारतीय युवाओं को पश्चिमी कला, वेस्टर्न आर्ट के प्रति अनुकरण की बजाय अपने देश की कला पर गर्व करने की सलाह दी। राष्ट्रीयतावादी कला, नेशनलिस्ट आर्ट, तीन टैगोरों, गगेंद्रनाथ ठाकुर, गगेंद्रनाथ टैगोर, अभानिंद्रनाथ ठाकुर, अबनिंद्रनाथ टैगोर और रवींद्रनाथ ठाकुर, रबींद्रनाथ टैगोर के कार्यों में चरमोत्कर्ष, कल्मिनेटेड तक पहुंची। The Vishwa Bharati University set up at Shantiniketan by Rabindranath Tagore was one of the key centers of the Bengal School of Art. Meanwhile, Abnindranath Tagore produced a masterpiece of nationalism in the form of Bharatha Mata, Mother India, painting. In this picture, he depicted her as a Hindu goddess, with four arms holding objects symbolic of national aspirations. रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांतिनिकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख केंद्रों में से एक था। इस बीच अभानिंद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रीयता की एक महान कृति, मास्टरपीस, भारत माता, बारथा माता के रूप में बनाई। इस चित्र में उन्होंने भारत माता को एक हिंदू देवी के रूप में चित्रित किया, जिनके चार हाथ थे, जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं, नेशनल एस्पिरेशंस के प्रतीक वस्त्रों को पकड़ते हुए दिखाए गए थे। फोटोग्राफी। The art of photography became popular from the mid-19th century onwards. Now, a camera was available to do the job perfectly. Soon this new version of artistic creation reached India. Many Indians took keen interest in photography, such as Maharaja Birchandra Manekya of Tripura, Maharaja Savai Ram Singh II of Jaipur and Lala Deen Dayal. Their photographs were mainly depicted courts, women, notable Britishers and British and Indian patrons. फोटोग्राफी की कला, आर्ट ऑफ फोटोग्राफी 19वीं सदी के मध्य, मिड-19th सेंचुरी से लोकप्रिय, पॉपुलर हुई। अब एक कैमरा उपलब्ध था जो इस कार्य को पूरी तरह से करने में सक्षम था। जल्दी ही यह कला भारत, इंडिया में भी पहुंच गई। कई भारतीयों ने फोटोग्राफी में गहरी रुचि, कीन इंटरेस्ट ली, जैसे त्रिपुरा के महाराज बिरचंद्र माणिक्य, महाराजा बिरचंद्र माणिक्य, जयपुर के महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई राम सिंह II और लाला दीन दयाल। उनकी फोटोग्राफ्स मुख्यतः दरबारों, कोर्ट्स, महिलाओं, विमेन, महत्वपूर्ण ब्रिटिश व्यक्तियों, नोटेबल ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश तथा भारतीय संरक्षकों, ब्रिटिश एंड इंडियन पैट्रन्स को दर्शाती थी। Lala Deen Dayal was appointed as court photographer of Viceroy Curzon in 1884. Through photography, he portrayed notable events of the courts and the architecture of new palaces.
लाला दीनदयाल को 1884 में वायसरॉय कर्जन का दरबारी फोटोग्राफर, कोर्ट फोटोग्राफर नियुक्त किया गया। फोटोग्राफी के माध्यम से उन्होंने दरबारों की महत्वपूर्ण घटनाओं और नए महलों, आर्किटेक्चर ऑफ न्यू पैलेसेस की वास्तुकला को चित्रित, पोर्ट्रेट किया। परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। The oral tradition of passing on knowledge from one generation to next, Guru Shishya, is very much alive even today. ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा, oral tradition, के माध्यम से सौंपने की परंपरा, गुरु शिष्य, आज भी जीवित, alive, है। Music and dance. Other aspects of culture also witness these same signs of growth and synthesis as visible in architecture, painting and literature. The music and dance of India developed very rich variety on the foundations laid in ancient times. संगीत और नृत्य, म्यूजिक एंड डांस, संस्कृति, कल्चर के अन्य पहलुओं ने भी वास्तुकला, आर्किटेक्चर, चित्रकला, पेंटिंग और साहित्य, लिटरेचर में दिखाए गए समान संकेतों, साइंस को देखा। भारत का संगीत और नृत्य, म्यूजिक एंड डांस, प्राचीन काल में रखी गई नींव, फाउंडेशंस पर एक बहुत समृद्ध विविधता, रिच वैरायटी में विकसित हुआ। The earliest tradition of Indian music can be traced back to the Vedas, which prescribed the pitch and accent for the chanting of ancient hymns. The earliest known treatise of Indian music, dance and drama, Bharatas Natya Shastra, is as old as 2nd century BC. The musical terminology that we use today is mostly derived from this treatise. Indian music, both vocal and instrumental, developed with 7 basic notes and 5 others. Different string, wind and drum instruments were invented later. भारतीय संगीत की प्राचीन परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, वेदों, वेदास में पाई जा सकती है, जिन्होंने प्राचीन मंत्रों, एंशिएंट हिम्स के उच्चारण के लिए सुर, पिच और लय, एक्सेंट निर्धारित किए थे। भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक, डांस एंड ड्रामा पर सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ भरत का नाट्यशास्त्र, बारथास नत्यशस्त्र, 2री सदी ईसा पूर्व, 2nd century BC का है। आज जो संगीत की शब्दावली, म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी हम उपयोग करते हैं, वह अधिकांशतः इस ग्रंथ से ही निकली है। भारतीय संगीत, चाहे वह गायन, वोकल हो या वाद्य, इंस्ट्रूमेंटल, 7 मुख्य सुरों, 7 बेसिक नोट्स और 5 अन्य सुरों, 5 others के साथ विकसित हुआ। इसके बाद विभिन्न तार, स्ट्रिंग, पवन, वाइंड और तबला, ड्रम, वाद्य यंत्रों, इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार हुआ। India's music is based on the combination of vocal and instrumental music along with dance. And a combination of these 3 is called Sangeet, which makes a performance complete. Before 13th century, Indian music was fundamentally single type of musical form. But with the invasion of the Mughals, the music of North and Central India, Hindustani music, blended with the Mughal musical influences of Arabia and Persia, whereas the Carnatic music of the South remained free of external influence. भारत का संगीत, India's music, गायन, वोकल और वाद्य संगीत, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के संयोजन, कॉम्बिनेशन पर आधारित है। साथ ही नृत्य, डांस भी इसका हिस्सा है। इन तीनों का संयोजन संगीत कहलाता है, जो एक प्रस्तुति को पूरा, कंप्लीट करता है।
13वीं सदी से पहले भारतीय संगीत मूल रूप से एक ही प्रकार की संगीत शैली, सिंगल टाइप ऑफ म्यूजिकल फॉर्म था। लेकिन मुगल्स के आक्रमण इन्वेजन के बाद उत्तर और मध्य भारत का संगीत, हिंदुस्तानी म्यूजिक, अरबी और फारसी, अरेबिया एंड पर्शिया के मुगली संगीत प्रभावों, मुगल म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस से मिश्रित हो गया, जबकि दक्षिण का कर्नाटिक संगीत, कर्नाटिक म्यूजिक, बाहरी प्रभावों, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मुक्त, फ्री रहा। Indian music has continued to evolve and develop through the centuries. The Turkish invasion brought Sufi influence on Indian music. Akbar's reign witnessed the emergence of Darbar Sangeet. Tansen, born Ramtanu Pandey, was a legendary vocalist, instrumentalist and composer of Akbar's time, who influenced the Hindustani classical music in major way. भारतीय संगीत, इंडियन म्यूजिक, सदियों से विकसित और बदलता रहा है। तुर्की आक्रमण, टर्किश इन्वेजन, ने भारतीय संगीत पर सूफी प्रभाव, सूफी इन्फ्लुएंस डाला। अकबर के शासनकाल, अकबर्स रेन, में दरबार संगीत का उदय हुआ। तानसेन, जिनका जन्म रामतनु पांडे के नाम से हुआ था, अकबर के समय के एक लेजेंडरी गायक, वादक, वोकलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और संगीतकार, कंपोजर थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर गहरा प्रभाव डाला। The beginning of the 19th century saw the inception of musical forms like Khayal and Thumri. The early 20th century witnessed the first music college named Gandharv Mahavidyalaya in 1901 established by V.D. Paluskar. V.N. Bhatkhande pioneered the introduction of an organized musical system reflecting current performing practices. 19वीं सदी के आरंभ में संगीत के नए रूपों जैसे ख्याल और ठुमरी का जन्म हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में 1901 में पहला संगीत कॉलेज गांधर्व महाविद्यालय स्थापित किया गया, जिसे वी.डी. पलुस्कर ने स्थापित किया था। वी.एन. भटखंडे ने एक संगठित संगीत प्रणाली, ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिकल सिस्टम की शुरुआत की, जो वर्तमान में प्रचलित संगीत प्रदर्शन, करंट परफॉर्मिंग प्रैक्टिसेस को दर्शाती है। A number of musical schools, घरनास, developed in North India, Hindustan. The Patiala Gharana of Punjab has been one of the most influential schools. There was Ali Bucks in the early 20th century, followed by his son Bed Ghulam Ali Khan. They handed over the mantle to Rashid Khan in the 1990s. While Abdul Karim Khan created the Kirana Gharno in the early 20th century, Alladia Khan matched his feat with his Atrauli Jaipur घराना। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में कई संगीत विद्यालय, घरनास विकसित हुए। पंजाब का पटियाला घराना सबसे प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल घरानों में से एक रहा है। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में अली बख्श थे, जिनके बाद उनके पुत्र बड़े गुलाम अली खान, बेट गुलाम अली खान ने अपनी कला का विस्तार किया। उन्होंने 1990 के दशक में अपना उत्तराधिकार मैंटल रशीद खान को सौंपा। वहीं अब्दुल करीम खान ने 20वीं सदी की शुरुआत में किराना घराना की स्थापना की, जबकि अल्लादिया खान ने अपने अत्रौली जयपुर घराने
अतरौली जयपुर घराना के साथ उसी उपलब्धि फीट को हासिल किया। India has had a long tradition of dancers and dance styles since the ancient period. The story of Indian dance is there for all to see in the temple structures of ancient and medieval times. The image of Shiva as Nataraja, the king of dancers, illustrates the influences of dance on the life of Indians. Classical dance is bound by rigid rules and strict discipline. There are a number of classical dance forms in India. भारत में प्राचीन काल से ही नृत्य, डांस और नृत्य शैलियों, डांस स्टाइल्स की एक लंबी परंपरा रही है। भारतीय नृत्य की कहानी प्राचीन और मध्यकालीन मेडिवल काल के मंदिरों की संरचनाओं, टेम्पल स्ट्रक्चर्स में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के नटराजा रूप का चित्रण, इमेज, भारतीय जीवन में नृत्य के प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस को दर्शाता है। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, कठोर नियमों, रिजिड रूल्स और अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बंधा हुआ होता है। भारत में कई शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। Each dance form represents the ethos of a particular region or a population group. Some of the popular classical styles are Bharatanatyam, Tamil Nadu, Kathakali and Mohiniyattam, Kerala, Odisha, Kathak, Uttar Pradesh, Kuchipudi, Andhra Pradesh, and Manipur. The themes of Indian dance are derived from Indian mythology, legends and classical literature. प्रत्येक नृत्य शैली एक विशेष क्षेत्र, रीजन या जनसमूह, पॉपुलेशन ग्रुप की संस्कृति, ईथोस का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, क्लासिकल स्टाइल्स हैं भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम, केरल, ओडिशा, कथक, उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। भारतीय नृत्य के विषय भारतीय पुराणों, मिथोलॉजी, किंवदंतियों, लेजेंड्स और शास्त्रीय साहित्य, क्लासिकल लिटरेचर से प्रेरित होते हैं। Indian cinema. Theatre in India is as old as music and dance. However, while classical theatre is limited to few places, every region has its own form of folk theatre. Technically, cinema is nothing but theatre transformed by technology. This history of Indian cinema goes back to the last decade of the 19th century. भारत में रंगमंच, थिएटर उतना पुराना है जितना संगीत और नृत्य। हालांकि जबकि शास्त्रीय रंगमंच, क्लासिकल थिएटर कुछ स्थानों तक ही सीमित है, हर क्षेत्र, रीजन का अपना लोक रंगमंच, फोक थिएटर होता है। तकनीकी दृष्टि से सिनेमा बस रंगमंच का तकनीकी रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन है। भारतीय सिनेमा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, 19वीं सदी के अंतिम दशक, लास्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी तक जाता है। In 1896, cinema came to India with the screening of silent short film of Lumiere Brothers at the Watson Hotel, Bombay. Later, Hiralal Sen began filming scenes of theatre productions at the Classical Theatre in Calcutta, Kolkata, with Indian cinema firmly on the road to commercial production. The first feature film, Pundlik, by N.G. Chitre and R.G. Tony was a great success. 1896 में सिनेमा भारत में ल्यूमियर ब्रदर्स की एक मूक शॉर्ट फिल्म, साइलेंट शॉर्ट फिल्म
के प्रदर्शन के साथ आया, जिसे बॉम्बे के वॉटसन होटल, बॉम्बे में दिखाया गया। बाद में हीरालाल सेन ने कोलकाता के शास्त्रीय रंगमंच, क्लासिकल थिएटर में रंगमंच प्रस्तुतियों के दृश्य फिल्माना शुरू किया। भारतीय सिनेमा ने व्यावसायिक उत्पादन, कमर्शियल प्रोडक्शन की दिशा में कदम रखा और एनजी चित्रे और आरजी टोनी द्वारा बनाई गई पहली फीचर फिल्म पुंडलीक ने शानदार सफलता, ग्रेट सक्सेस हासिल की। राजा हरिश्चंद्र, the first full-length Indian feature film, was produced by Dada Saheb Phalke in 1912. In 1931, Alamara made cinematic history, being the first Indian film with soundtrack. The year 1918 witnessed the screening of the first regional feature film, made in Bengal and in South Indian language. 1912 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली पूर्ण लंबाई फीचर फिल्म, फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म थी। 1931 में आलमरा ने सिनेमा इतिहास, सिनेमैटिक हिस्ट्री रचा, क्योंकि यह भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसमें साउंड ट्रैक था। 1918 में बंगाल और दक्षिण भारतीय भाषा में बनी पहली क्षेत्रीय फीचर फिल्म, फर्स्ट रीजनल फीचर फिल्म का प्रदर्शन हुआ। लिटरेचर। The 19th and 20th centuries saw the maturing of Indian literature. Earlier, it was confined to religion and mythology. Most of it was not related to the present. Now literature adopted secular and national themes. The individual became important and his day-to-day problems and struggles became the central theme of the literary works of this period. New forms of writing such as novels, short stories, dramas and essays became popular. Since patriotism, nationalism and social reforms were the prevailing social preoccupations, these reflected in the literature. 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर ने परिपक्वता, मैच्योर्ड प्राप्त की। पहले यह धर्म, रिलीजन और पुराणों, मिथोलॉजी तक सीमित था। इसका अधिकांश हिस्सा वर्तमान, प्रेजेंट से संबंधित नहीं था। अब साहित्य ने धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और राष्ट्रीय, नेशनल विषयों को अपनाया। इस समय के साहित्यिक कार्यों का केंद्रीय विषय व्यक्ति, इंडिविजुअल और उसके दैनिक संघर्ष, डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स बन गया। लेखन, राइटिंग के नए रूप जैसे उपन्यास, नॉवेल्स, लघुनाट्य, शॉर्ट स्टोरीज, नाटक, ड्रामास और निबंध, एसेज लोकप्रिय, पॉपुलर हुए। चूंकि देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म और सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स उस समय के प्रमुख सामाजिक मुद्दे, प्रिवेलिंग सोशल प्रिऑक्यूपेशंस थे, ये साहित्य में प्रमुख रूप से दिखाई देने लगे। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, G.H. Deshmukh, Sri Narayana Guru were powerful writers who wrote influential books and edited journals in their respective languages. Though Bhartendu Harishchandra pioneered modern Hindi literature, it is Munshi Premchand who is credited with introducing realism in Hindi prose by focusing on the social issues of the day. His works had a far-reaching effect on the popular imagination. राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर
G.H. देशमुख, G.H. देशमुख, श्री नारायण गुरु, श्री नारायणा गुरु जैसे प्रभावशाली लेखक, पावरफुल राइटर्स थे जिन्होंने अपने अपने भाषाओं में प्रभावशाली किताबें लिखी और पत्रिकाओं का संपादन किया। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी साहित्य, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की नींव रखी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को हिंदी गद्य, हिंदी प्रोज में यथार्थवाद, रियलिज्म को पेश करने का श्रेय क्रेडिटेड दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय के सामाजिक मुद्दों, सोशल इश्यूज पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कार्यों, वर्क्स का लोकप्रिय कल्पना, पॉपुलर इमेजिनेशन पर दूरगामी प्रभाव, फार रीचिंग इफेक्ट पड़ा। With the impact of European languages and culture after the mid-19th century, Indian writers were influenced by the classical themes of Western thought like humanism, freedom, individualism, etc. However, nationalism was the main driving force for the 20th century Indian writers. They played an important role in arousing national consciousness. 19वीं सदी के मध्य के बाद यूरोपीय भाषाओं और संस्कृति, यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर के प्रभाव, इम्पैक्ट के कारण भारतीय लेखकों, इंडियन राइटर्स पर पश्चिमी विचारधारा, वेस्टर्न थॉट के शास्त्रीय विषयों जैसे मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, स्वतंत्रता, फ्रीडम, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म आदि का प्रभाव पड़ा। हालांकि 20वीं सदी के भारतीय लेखकों के लिए राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म मुख्य प्रेरक शक्ति, मेन ड्राइविंग फोर्स रही। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस को जागृत, अराउज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंकिम चंद्रा चैटर्जी एंड रबींद्रनाथ टैगोर इन बंगाली, लक्ष्मी बेजबरुआ एंड हेमचंद्र इन असामीज, विष्णु शास्त्री चिपलंकर and Hari Narayan Apte in Marathi, Subramanyam Bharti in Tamil, Kumaran Asan and Vallathol K. Venkatappa Govda Putpa in Kannada, Altab Hassan Ali and Muhammad Iqbal in Urdu and Premchand in Hindi were prominent. Premchand's inspiring prose supported the cause of Hindu-Muslim unity. बंगाली में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्रा चैटर्जी और रविंद्रनाथ ठाकुर, रबींद्रनाथ टैगोर, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, लक्ष्मी बेजबरुआ और हेमचंद्र, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर और हरि नारायण आप्टे, तमिल में सुब्रमण्यम भरती, कन्नड़ में कुमारन आसान और वल्लथोल के वेंकटप्पा गोवड़ा पुट्पा, उर्दू में अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताब हसन अली और मोहम्मद इकबाल और हिंदी में प्रेमचंद प्रमुख थे। प्रेमचंद की प्रेरक गद्य, इंस्पायरिंग प्रोज ने हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कारण का समर्थन किया। Poetry also flourished during this period. Rabindranath Tagore composed the national anthem, Jana Gana Mana. Rabindranath Tagore got the Nobel Prize for Literature in 1913. The national song, Vande Mataram, was composed by Bankim Chandra Chatterjee, while Sare Jahan Se Acha by Muhammad Iqbal continues to stir our heartstrings. इस अवधि, पीरियड के दौरान कविता, पोएट्री भी फली फूली। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत, जन गण मन, नेशनल एंथम, जाना गाना मना रचा। रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य, लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार,
नोबेल प्राइज मिला। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम चंद्रा चैटर्जी द्वारा रचा गया, जबकि सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया, जो आज भी हमारे दिलों को छूता स्टरा हर्ट स्ट्रिंग्स है। ग्रोथ ऑफ द इंडियन प्रेस। Print media played a crucial role in reflecting the social, political and economic conditions of a nation. The Europeans brought printing technology to India. As early as 1557, Portuguese Jesuits set up a press in Goa and began to print religious literature. In course of time, printing technology spread throughout India. Newspapers owned by the British were supporters of the British rule. Print media ने एक राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों social, political and economic conditions को प्रकट, रिफ्लेक्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपियों ने भारतीय उपमहाद्वीप, इंडिया में प्रिंटिंग तकनीक, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाई। 1557 में पुर्तगाली पोर्चुगीज जेसुइट्स ने गोवा में एक प्रेस स्थापित किया और धार्मिक साहित्य रिलीजियस लिटरेचर छापना शुरू किया। समय के साथ प्रिंटिंग तकनीक पूरे भारत में फैल गई। ब्रिटिशों के स्वामित्व वाले समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल के समर्थक सपोर्टर्स थे। In the 19th century, presses owned by Indians began publishing newspapers, journals and magazines in both vernacular languages as well as English. Most of the reformers were involved in editing and publishing newspapers and journals. They gave voice to the grievances of the Indians and their social, economic and political demands. In the latter part of the 19th century, the growing number of newspapers helped to mobilize public opinion in favor of seeking freedom from British rule. 19वीं सदी में भारतीयों द्वारा स्वामित्व वाले प्रेसेस ओन्ड बाय इंडियंस ने समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाओं, जर्नल्स और मैगजीन्स का प्रकाशन शुरू किया, जो वर्नाक्युलर भाषाओं, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस और अंग्रेजी, इंग्लिश दोनों में थे। अधिकांश सुधारक, रिफॉर्मर्स, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादन, एडिटिंग और प्रकाशन, पब्लिशिंग में शामिल थे। उन्होंने भारतीयों, इंडियंस की शिकायतों, ग्रीवेंसेस और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मांगों, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिमांड्स को आवाज, वॉइस दी। 19वीं सदी के अंत में समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या, ग्रोइंग नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग, सीकिंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल के लिए जनमत, पब्लिक ओपिनियन को संगठित, मोबिलाइज करने में मदद की। मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। Like all other aspects, the colonization also had impact on Indian architecture. Colonization ushered in a new chapter in Indian architecture. The English left a lasting impression on Indian architecture. Now were as elegant or grand as those of the Mughals, the buildings constructed by the British were generally utilitarian in concept, being basically civic, defensive और commemorative structures. अन्य पहलुओं की तरह उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन का भारतीय वास्तुकला, इंडियन आर्किटेक्चर पर भी प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद ने भारतीय वास्तुकला में एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर, शुरू किया। अंग्रेजों, इंग्लिश
ने भारतीय वास्तुकला पर गहरी छाप, लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ी। मुगल्स की तरह शाही और भव्य, एलिगेंट और ग्रैंड नहीं, बल्कि ब्रिटिशों द्वारा निर्मित इमारतें, बिल्डिंग्स सामान्यतः उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन थीं, जो मुख्यतः नागरिक, रक्षा, डिफेंसिव या स्मारक, कमेमोरेटिव संरचनाएं थीं। The first building constructed by the British were factories, but later on, district administration offices, courts of justice, schools, municipal halls and dak bungalows came up. These were ordinary structures built by garrison engineers with a view to solidity, defendability, and heat insulation. They were readily expandable, with large courtyards, gardens, etc., tended to by an army of gardeners, caretakers and cleansers. A thing to notice is that in the beginning the architectural designs were clearly aimed at creating and consolidating authority. Later examples of colonial architecture culminated in a new form that some refers to as Indo-European architecture. ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई पहली इमारतें, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज थीं, लेकिन बाद में जिला प्रशासन कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, स्कूल्स, नगरपालिका हॉल, म्युनिसिपल हॉल्स और डाक बंगलोज बने। ये साधारण, ऑर्डिनरी संरचनाएं थीं, जो गढ़ी, गैरिसन, इंजीनियरों द्वारा बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य मजबूती, सॉलिडिटी, रक्षा, डिफेंडेबिलिटी और तापमान इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन था। इन्हें आसानी से विस्तार, एक्सपैंडेबल किया जा सकता था, जिनमें बड़े आंगन, कोर्टयार्ड्स, बगीचे, गार्डन्स आदि होते थे, जिन्हें बागवानों, देखरेख करने वालों और सफाई कर्मचारियों की सेना, आर्मी द्वारा संभाला जाता था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू में वास्तुकला डिजाइनों का उद्देश्य, पर्पस, स्पष्ट रूप से सत्ता, अथॉरिटी को स्थापित और सुदृढ़, कंसोलिडेट करना था, लेकिन बाद के उदाहरणों में उपनिवेशी वास्तुकला, कॉलोनियल आर्किटेक्चर एक नए रूप में बदल गई, जिसे कुछ लोग इंडो यूरोपीय वास्तुकला, इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं। This style owed its origin to geographical and climatic conditions prevalent in India. The British were not used to the extreme heat and humidity, so the entire effort was directed at offsetting the acute discomfort they suffered. This party explains their insistence on high ceilings, thick stone walls, gardens, fountains, etc. The English style, mainly seen in their residential buildings and army barracks, enlarged the concept of large spacious bungalows for residential purposes, with wide windows and ventilators, surrounded with lawns, gardens, fountains and trees to keep the surroundings cool. यह शैली, स्टाइल, भारत में प्रचलित भौगोलिक, जियोग्राफिकल और जलवायु, क्लाइमैटिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई थी। ब्रिटिश अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के आदी नहीं थे, इसलिए उनका पूरा प्रयास, एफर्ट, इस बात पर केंद्रित था कि वे जिस तीव्र असुविधा, एक्यूट डिस्कम्फर्ट का सामना कर रहे थे, उसे कम किया जा सके। यही कारण है कि वे ऊंची छतों, हाई सीलिंग्स, मोटी पत्थर की दीवारों, थिक स्टोन वॉल्स, बगीचों, गार्डन्स, फव्वारों, फाउंटेन्स आदि पर जोर देते थे। अंग्रेजी शैली, इंग्लिश स्टाइल, जिसे मुख्यतः उनके आवासीय भवनों, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और सेना के बैरकों, आर्मी बैरक्स में देखा जाता है, ने आवासीय उद्देश्यों के लिए बड़े और स्पेशियस बंगलोज की अवधारणा
कंसेप्ट को बढ़ाया, जिनमें चौड़ी खिड़कियां, वाइड विंडोज और वेंटिलेटर्स होते थे, और यह सभी लॉन, बगीचे, फव्वारे और पेड़ों, ट्रीज से घिरे होते थे ताकि आसपास का वातावरण ठंडा, कूल रखा जा सके। The colonial architecture was the blend of Hindu, Islamic and Western elements. Some colonial architectures survive in innumerable institutional, civic and utilitarian buildings such as post offices, railway stations, rest houses and government buildings. Such buildings began to be built in large numbers in different parts of British India. From the mid-19th century onwards, the Anglo-Indian builders started following the Gothic model in the construction of churches, complete with flying buttresses and tall, stained glass windows. Style heavier than Gothic were frequently employed. Some examples of these are the Mutini Memorial Church at Kanpur and the Last Garrison Church in New Delhi. उपनिवेशी वास्तुकला, colonial architecture, हिंदू, इस्लामिक और पश्चिमी, वेस्टर्न तत्वों, एलिमेंट्स का मिश्रण, ब्लेंड थी। कुछ उपनिवेशी वास्तुकला, colonial architecture, अनगिनत संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल, नागरिक, सिविक और उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन भवनों, बिल्डिंग्स के रूप में जीवित रहती है, जैसे डाकघर, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस, विश्रामगृह, रेस्ट हाउसेज और सरकारी इमारतें, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इस तरह के भवन ब्रिटिश इंडिया के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में बनने लगे थे। 19वीं सदी के मध्य से एंग्लो इंडियन निर्माणकर्ताओं, एंग्लो इंडियन बिल्डर्स ने चर्चेस के निर्माण में गॉथिक मॉडल का पालन करना शुरू किया, जिसमें फ्लाइंग बट्रेसेस और लंबी रंगीन कांच की खिड़कियां, स्टेन ग्लास विंडोज होती थी। गॉथिक से भारी शैली, हेवियर स्टाइल को भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता था। इसके उदाहरणों में कानपुर में म्यूटिनी मेमोरियल चर्च और नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में अंतिम गढ़ी चर्च, लास्ट गैरिसन चर्च शामिल हैं। The classical and Baroque style took the innovation in architecture even further. Walter Carnwell's Calcutta General Post Office is its best example. When it ran out of ideas or stopped responding to imperatives, it lapsed into aggressive imitation. One can see INTE Victoria Memorial, where William Emerson bravely but foolishly tried to imitate the Taj Mahal, in material if not in form. क्लासिकल और बारोक शैली, क्लासिकल एंड बारोक स्टाइल ने वास्तुकला, आर्किटेक्चर में नवाचार, इनोवेशन को और भी आगे बढ़ाया। वाल्टर कार्नवेल का कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस, वॉल्टर कार्नवेल्स कैलकटा जनरल पोस्ट ऑफिस, इसका बेहतरीन उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल है। जब इस शैली के विचार समाप्त हो गए या यह आवश्यकताओं का जवाब देना बंद कर दी, तो यह आक्रामक अनुकरण, एग्रेसिव इमिटेशन में बदल गई। इसका उदाहरण विक्टोरिया मेमोरियल में देखा जा सकता है, जहां विलियम एमर्सन ने बहादुरी से लेकिन मूर्खतापूर्वक ताजमहल की सामग्री, मटेरियल से नकल करने की कोशिश की, भले ही रूप, फॉर्म में नहीं। केस स्टडी, Mumbai originally consisted of 7 islands on the west coast of India that were part of the Mauryan Empire under Ashoka. After his death, these islands passed into the hands of various Hindu rulers until 1343 when the Muslim ruler of Gujarat took it over.
The only mark of that period is the mosque at Mahim. मुंबई मूलतः भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 7 द्वीपों 7 आइलैंड्स से बना था, जो अशोक के तहत मौर्य साम्राज्य मौर्यन एम्पायर का हिस्सा थे। उनके निधन के बाद ये द्वीप विभिन्न हिंदू शासकों हिंदू रूलर्स के अधीन हो गए, जब तक कि 1343 में गुजरात के मुस्लिम शासक मुस्लिम रूलर ऑफ गुजरात ने इसे अपने अधीन नहीं कर लिया। उस अवधि का एकमात्र निशान माक माहिम में स्थित मस्जिद है। In 1534, the Portuguese, who already controlled many important trading centers on the western coast, such as Panji, Daman, Diu, took Bombay by force of arms from the ruler of Gujarat. This led to the establishment of numerous churches. After 128 years, the islands were given to the English King Charles II in dowry on his marriage to Portuguese Princess Catherine of Braganza in 1662. In 1668, the islands were acquired by the English East India Company on lease from the Crown. 1534 में पुर्तगालियों पोर्चुगीज, जो पहले ही पश्चिमी तट वेस्टर्न कोस्ट के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों ट्रेडिंग सेंटर्स जैसे पंजी, दमन, दीयू पर काबिज थे, ने गुजरात के शासक से फोर्स ऑफ आर्म्स से बॉम्बे को छीन लिया। इसके बाद कई चर्चों की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूमरस चर्चेज हुई। 128 ईयर्स बाद 1662 में इन द्वीपों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा से इंग्लिश किंग चार्ल्स II के विवाह पर दहेज डाउरी के रूप में दे दिया गया। 1668 में इन द्वीपों को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्राउन से पट्टे लीज पर ले लिया। The shifting of the East India Company's headquarters to Bombay in 1687 led to the development of the city. The docks of Bombay speak volumes of the city's industrial development. The first railway line in India was laid from Bombay to Thane in 1849. Bombay was one of the first cities in India to have newspapers. ईस्ट इंडिया कंपनी का 1687 में बॉम्बे में मुख्यालय स्थानांतरित हेडक्वार्टर्स शिफ्टेड होने से शहर का विकास डेवलपमेंट हुआ। बम्बई के डॉक्स शहर के औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे बॉम्बे टू थाने तक 1849 में बिछाई गई। बम्बई उन पहले शहरों में से एक था जहां समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स प्रकाशित होने लगे थे। There soon developed a mixed culture of Parsis, Christians, Muslims, etc. In painting and literature of this city, the impact of these various communities has been very prominent. World-famous painters Tayyab Mehta and M.F. Hussain belong to member. जल्द ही पारसिस, ईसाई, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स आदि की एक मिश्रित संस्कृति मिक्स्ड कल्चर विकसित हुई। इस शहर के चित्रकला, पेंटिंग और साहित्य लिटरेचर में इन विभिन्न समुदायों कम्युनिटीज का प्रभाव इम्पैक्ट बहुत प्रोमिनेंट रहा। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार वर्ल्ड फेमस पेंटर्स तैयब मेहता और एम.एफ. हुसैन
बम्बई से संबंधित, belong to Mumbai, eh? In performing arts, this city has no comparison. Prithvi Theatre was established by veteran actor Prithvi Raj Kapoor. Its first play was Kalidasa's classic Shakuntala. Bollywood is the famous Hindi film industry in Mumbai. इस शहर में प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोई मुकाबला नहीं है। पृथ्वी थिएटर की स्थापना प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ने की थी। इसका पहला नाटक कालिदास की काव्य रचना शाकुंतला, कालिदासास क्लासिक शाकुंतला था। बॉलीवुड मुंबई में स्थित प्रसिद्ध हिंदी फिल्म उद्योग, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। The architecture of Mumbai reflects a deep impact of colonial architecture. Sir Gilbert Scott's buildings, such as Bombay University, were significant products. Other remarkable landmarks produced during this phase were William Emerson's Crawford Market, the Bombay High Court and the Victoria Terminus, now Shivaji Terminus. मुंबई की वास्तुकला, आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई पर उपनिवेशी वास्तुकला, कॉलोनियल आर्किटेक्चर का गहरा प्रभाव, डीप इम्पैक्ट है। सर गिलबर्ट स्कॉट की इमारतें जैसे बम्बई विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इस प्रभाव का महत्वपूर्ण उदाहरण, सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स हैं। इस अवधि फेज में निर्मित अन्य महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह, रिमार्केबल लैंडमार्क्स थे विलियम एमर्सन का क्रॉफर्ड मार्केट, बम्बई उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट और विक्टोरिया टर्मिनस जिसे अब शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। न्यू आर्किटेक्चर इन मुंबई। Afghan Church, also known as the Church of St. John the Evangelist, it was built by the Britishers to commemorate victory in the First Afghan War of 1838। अफगान चर्च, जिसे संत जॉन द इवेंजेलिस्ट चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजेलिस्ट भी कहा जाता है, को ब्रिटिशर्स द्वारा 1838 में पहले अफगान युद्ध, फर्स्ट अफगान वॉर में विजय की याद में कॉमेमोरेट बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया। The most popular monument of Bombay was constructed to commemorate the visit of British King George V in 1911. It was opened in 1924 by the Viceroy, the Earl of Reading. The monument has great historical significance because the last British troops that sailed for England left through this gateway. भारत का सबसे प्रसिद्ध स्मारक, मॉन्यूमेंट, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज वी के भारत दौरे, विजिट की याद में बनाया गया था। इसे 1924 में वायसराय दी अर्ल ऑफ रीडिंग द्वारा खोला गया। इस स्मारक का ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है क्योंकि अंतिम ब्रिटिश सैनिकों, ब्रिटिश ट्रूप्स ने इंग्लैंड के लिए रवाना होते समय इस द्वार, गेटवे से यात्रा की थी। विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। The monument is the best specimen of colonial architecture in India. It was built in 1888. It looks more like cathedral than railway station. It is a UNESCO World Heritage Site. Victoria Terminus, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, भारत में उपनिवेशी वास्तुकला, कॉलोनियल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण
बेस्ट स्पेसिमेन है। इसे 1888 में बनाया गया था। यह एक रेलवे स्टेशन से ज्यादा एक कैथेड्रल जैसा दिखता है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। केस स्टडी चेन्नई। The Vijayanagar Empire ruled the extreme south for over 2 centuries from 1350 to 1565. The 16th century witnessed the arrival of the Portuguese, followed by the Dutch trading companies. By 1612, the Dutch established themselves in Pulicat to the north. विजयनगर साम्राज्य विजयनगर एम्पायर ने 1350 से 1565 तक 2 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षिण भारत के अत्यंत दक्षिणी हिस्से पर शासन रूल्ड किया। 16वीं सदी में पुर्तगाली, पोर्चुगीज और फिर डच व्यापारिक कंपनियां डच ट्रेडिंग कंपनीज आईं। 1612 तक डचों ने उत्तरी भारत में पुलिकट में अपनी स्थिति एस्टैब्लिश देमसेल्व्स मजबूत की। मॉडर्न चेन्नई grew out of a small village when in 1639 fishing hamlet called Madraspatnam was selected by the early English merchants of the East India Company as site for the settlement. It was founded in 1639 on land given by the Raja of Chandragiri, the last representative of the Vijayanagar rulers of Hampi. They built a small fort at fishing settlement in 1644 and town, which subsequently came to be known as Georgetown, came up in the areas of Fort St. George. आधुनिक चेन्नई, मॉडर्न चेन्नई एक छोटे से गांव से विकसित हुआ जब 1639 में मद्रासपट्टनम नामक एक मछली पकड़ने वाला गांव फिशिंग हैमलेट को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक अंग्रेज व्यापारियों अर्ली इंग्लिश मर्चेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बसावट सेटलमेंट के लिए एक स्थल साइट के रूप में चुना गया। यह 1639 में चंद्रगिरी के राजा ऑफ चंद्रागिरी, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतिम प्रतिनिधि थे, द्वारा दी गई भूमि पर स्थापित फाउंडेड किया गया। 1644 में उन्होंने एक छोटा किला फोर्ट बनाया और एक नगर टाउन बसाया, जिसे बाद में जॉर्ज टाउन के नाम से जाना गया, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के क्षेत्र में स्थित था। In the latter half of the 18th century, Madras became a famous colonial center. The British constructed ports initially for trading purposes and later converted it into a naval base. 18वीं सदी के दूसरे भाग latter half of the 18th century में मद्रास एक प्रसिद्ध उपनिवेशी केंद्र कॉलोनियल सेंटर बन गया। शुरुआत में ब्रिटिशों ने व्यापारिक उद्देश्यों ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए बंदरगाह पोर्ट्स बनाए और बाद में इसे एक नौसैनिक अड्डे नेवल बेस में बदल दिया। The city's glorious past is reflected in its literature and in the field of performing arts. Its literature is traceable to the three Sangams, academics of learned men. The Tirukkural is the most ancient Tamil classic and is considered to be masterpiece. Chennai is known for the classical Indian dance from Bharatanatyam. Dance and music have long been an inseparable part of the culture of the city. It is for Carnatic music. शहर का गौरवशाली अतीत ग्लोरियस पास्ट इसके साहित्य लिटरेचर और प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स में दर्शाया जाता है। इसका साहित्य 3 संगम्स
से जुड़ा हुआ है, जो विद्वानों लर्न्ड मैन की बैठकें थी। तिरुक्कुरल तिरुक्कुरल सबसे प्राचीन तमिल काव्य, तमिल क्लासिक है और इसे एक काव्य कृति, मास्टरपीस माना जाता है। चेन्नई शास्त्रीय भारतीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य और संगीत, डांस एंड म्यूजिक लंबे समय से इस शहर की संस्कृति, कल्चर का अभिन्न हिस्सा, इंसेपरेबल पार्ट रहे हैं। यह कर्नाटिक संगीत, कर्नाटिक म्यूजिक के लिए भी प्रसिद्ध है। Colonial architecture in Chennai. The Madras High Court established in 1862. The Madras High Court building, which is an example of the Indo-Saracenic style, was completed in 1892 under the guidance of architect Henry Irving. Its decorative domes and corridors are exquisite examples of a new architectural style. It is said to be the second largest judicial building in the world, first being the Courts of London. मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की इमारत, जो इंडो-सारासेनिक शैली, इंडो-सारासेनिक स्टाइल का एक उदाहरण है, 1892 में आर्किटेक्ट हेनरी इरविन के मार्गदर्शन में पूरी हुई थी। इसकी सजावटी गुंबद, डेकोरेटिव डोम्स और गलियारों, कॉरिडोर्स में एक नई वास्तुकला शैली का अद्भुत उदाहरण देखा जाता है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक भवन, सेकेंड लार्जेस्ट जुडिशियल बिल्डिंग माना जाता है। पहला लंदन के न्यायालयों, कोर्ट्स के रूप में है।